ऐसे कि जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में बहुत बड़ा फर्क होता है। प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आपका 1 रुपया बढ़ गया, वो भी प्रॉफिट है। मैंने एक स्टॉक खरीदा 100 रुपए का था, वो 20 साल बाद 101 रुपए का हो गया, तो प्रॉफिट है। लेकिन वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब होता है कि अगर वो 100 रुपए की चीज 10,000 में होगी, वहां पे वेल्थ। The only thing to survive, the only thing that you need to do to survive in teaching profession is, you need to connect with these students. Number one. He said that, why visiting faculty? Why don't you come as a full-time faculty? I was like, sir, if I am capable of doing that, then I would certainly love to join you, sir. He said, वो मैं देख लूँगा तुम्हारी capability है कि नहीं, वो मैं देख लूँगा. And that was my first day at Wipro. मुझे सब्जेक्ट मिला था Principle of Management. And my first class was BCom. उसमें सिर्फ 3 बच्चे बैठे थे और उसमें से भी उन्होंने तो देखा कि यार एक नए फैकल्टी आए हैं, तो उसमें से भी दोनों बोला कि सर आपको कुछ काम नहीं जा रहा है, चलो एक बच्चे से मैंने स्टार्ट किया। So then gradually I guess I'm doing good. How to improve our communication skills in life and relationships both? मैंने जब कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाना स्टार्ट किया था सबको बच्चों को, तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता था कि कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? So किसी ने बोला वर्ड्स, क्लियर मैसेज, they said that the channel, the medium अच्छा होना चाहिए। सबने बोला, मैंने एक वर्ड बोला उनको, commitment. The communication requires commitment. What do you think about AI in teaching? What if I tell you that my best friend is, or for that matter, my best friend is Alexa? I am Professor Inderpreet Bhogal, and currently I am a teacher or a professor at iper, is a group of institutions, Bhopal. Prior to that, I was an IT engineer. I used to work with Dell, International Services, and I've also worked with Wipro. I've done my graduation in engineering from information technology way back in 2005, and I then completed my master's in business administration in the year 2017. Currently pursuing doctorate in philosophy and in management, of course. And I am now an official data scientist. I've completed my data science course from University of Texas at Austin. So that's what my current profile is. Why you started teaching? मतलब आपको पसंद मतलब आपको बचपन से बनना था या फिर? बचपन से नहीं बनना था मुझे. That is something which none of us have planned for ourselves. मेरे ख्याल से टीचिंग ऐसा प्रोफेशन बोला जाता है कि बहुत कम लोग होते हैं जो टीचिंग को ही अपना एक प्रोफेशन मान सकते हैं और लास्ट रिजॉर्ट की तरफ करते हैं. हाँ, मतलब वो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं. 10 में से मैं आपको बताऊं, 10 में से 1. मैंने अभी अपनी लाइफ में जो मैं आइपर में इंटरेक्शन करता हूँ, या आइपर के बाहर मैं जितने भी लोगों से इंटरेक्शन करता हूँ, just 2 people who I feel that they were meant for education. And one is Dr. Amarjit Singh Khaza sir, and second one is Dr. Anand sir. He is the director and principal of Institute of Hotel Management. When I interact with these 2 gentlemen, I feel as if they were meant for education. I must say, education is meant for them. Because सोते जागते उठते बैठते कोई इंसान आपको कहीं से भी उठा के ज्ञान दे सकता है, जिसने 30 साल दे दिए हो, 32 साल अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट लाइफ दे दी हो अगर टीचिंग में, देन आई फील ये यस दे वर मेंट फॉर एजुकेशन. मैं कैसे टीचर बना, बहुत बड़ा उसके पीछे आई एम एन एक्सीडेंटल प्रोफेसर. मैं अपने आपको एक्सीडेंटल प्रोफेसर बोलता हूँ कि मैं एक्सीडेंट से बन गया था भाई. चलो, आई वाज एन आईटी इंजीनियर. मेरे को कोड्स में और उसमें बड़ा शौक था. I love the codes and IT part, web development part. मेरे को ये बड़ा अच्छा लगता है. बट लेकिन एक चीज की प्रॉब्लम है कि जब मैं वापस आया भोपाल, there were not much scope in information technology. बहुत ज्यादा scope वो मेट्रोस में ज्यादा था. वो आज भी नहीं है. I feel that there is no much scope of IT in Bhopal still. Why? Because of package? Maybe because of package, maybe because of the education system, maybe because of these students. Yes, we have good engineering colleges, but we have not good, I'm sorry, but we have a lot of engineering colleges, but the quality is compromised over the time. So that is something which is
Very, very important. What do you think? Why IITs are not here? Maybe the infrastructure. First, we have IIM in Indore, but not in Bhopal, and that we are capital city. Maybe the infrastructure is not supporting. Maybe there is a government clash. For example, when we have IITs and IIMs, then the corporate world will also open, of course, and the people will migrate from different states, and that will involve so many things. I don't want to comment on that. And we have people from so many states coming in one state. The responsibility of maintaining law and order becomes even more difficult. Like, we have seen so many problems in all the metros, especially Delhi, Mumbai. There's so many crimes happening. Having said that, Bhopal is so peaceful. Right? Bhopal is so peaceful. We are happy amongst ourselves. हमें बाहर वाले की जरूरत नहीं है, हम आपस में खुश रहते हैं. कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, कुछ लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो पा रहा. हाउएवर, हमारे यहाँ भोपाल का अच्छा खासा क्राउड है. यहाँ पर हम IIT IIMs बहुत अच्छे से खोल सकते हैं. एंड अब तो मेट्रो भी आ रही है. तो what I feel is that very soon we'll be seeing one of the IIMs or IITs in Bhopal. क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है. क्योंकि गवर्नमेंट के दिमाग में कुछ तो होगा, क्योंकि मेट्रोज किसको घुमाएगा? तो मेट्रो को इतने लोग मिलेंगे ही नहीं जब तक कि हमारे पास प्रॉपर एक कॉर्पोरेट कल्चर ना हो और प्रॉपर हमारे यहाँ इंस्टीट्यूट्स ना हो. बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे यहाँ, बहुत सारे. इंजीनियरिंग के कम से कम 150 इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, क्या करते हैं, वो हम सभी जानते हैं. 3 या 4 है बस, वो हम सभी जानते हैं क्या होता है. Wait, I don't comment on that. So that is the reason why I guess IITs and IIMs are not here, because of proper infrastructure, or because of improper infrastructure. How you are favorite of everyone? How am I a favorite of everyone? That's a very tricky question, and becomes very difficult considering that when you are teaching almost 300 students every day in different classes and different courses, maybe it's in BBA, maybe it's in BCom, maybe it's in management students, the MBA students. Of course, it becomes very difficult to connect with every student. My first interaction with Dr. Amarjit Singh Khalsa sir, he told me that the only thing to survive, the only thing that you need to do to survive in teaching profession is, and you need to connect with these students. Now, that connection is very important, considering that is the only thing which teaching has as a core, that is connecting to the students. The first thing, that who am I teaching? I'm teaching students, right? And till the time I don't connect with them, till the time I'm not committed to my students, I'm not committed to my work, I would not be justifying my teachership. I would not be justifying my work. The only thing that is required for a good teacher to teach in an efficient way is to connect with the students. And to connect with the students, first we need to understand their psychology first. Now, what is psychology? Again, it's how our brain functions. That's a study of the brain. Students has different psychology in different aspects of life. Like the first day of the college, when they enter the first day of the college, the first day, they are quite skeptical about how they'll survive in this college life. What's going to happen? Yes. What are the teaching methods? Who will be my teacher? They were in school and they have seen their teachers for quite a long time, 12 years, 14 years is something which is a very, very long time. And now completely changing their lives from school to college when they transit. The only thing that they look for is a comfort zone. From discipline to comfort. Of course. From discipline life to a comfort zone life where they search for that comfort zone. And it becomes very important for us to give them that comfort zone. First, the cool life. They should know that the college life is not that difficult to handle. It is very easy to handle, considering that we have any good college has a good efficient pedagogy, and the way they teach their students is very flawless. Just like I have seen iper, the way they teach is absolutely flawless, and the way we interact with the students, we have induction programs and we have everything. The way we do it, it's very efficient. It's in a very proper manner, in a very disciplined manner, and we give students what they are looking for.
Of course, they need to know how the education system works. Of course, they need to know how we are teaching, who will be our teachers, what all different activities we do every year, round the clock, round the year, what all we do. And induction program, we show everything. Yes. Induction program is just the way we connect with the students. They have lots and lots of doubts when they are entering the college life. And whenever a student looks up to someone, if they have a doubt, whenever they look up to someone, then that is a teacher only. And when we can clear their doubts, when we ourselves are confident that yes, we can clear almost every doubt of my student, that is the time when we start connecting with this. Yes. When they enter their first class, their first faculty walks in, that's a time when the most important aspect of connection happens. When it is not just inside the book that we teach, it's something which is outside the book as well, that we want to tell the students. That what is college life? How are you supposed to behave? What if you're not sincere about your studies? What will happen? What all subjects they'll be taught in the college? What subject that particular teacher will be teaching? It's very important to tell them about it. A little life lessons, small activity on the very first day won't harm your teaching method. It's something which is the way we can connect with the students. Most important aspect is connection with the student. And that's how I feel that that very connection, the very first couple of days or 3 days that you make with the student, makes a teacher a favorite teacher. That's the time when you can connect with the students. They should be comfortable in approaching you in any, if they have any question, if they have any doubts, they should be comfortable in approaching you. So that's what I feel, that as a teacher and as a student, we both should be comfortable with each other. And of course, the second thing, this is something which is a human connection. The second thing is, the most important thing is the knowledge of the subject that I'm teaching. Yes. If I don't have that appropriate knowledge, if I don't have a proper knowledge that the student is looking for. Today, we have Google, we have ChatGPT. Students are aware about so many things. Yes. They can just Google it. In just 5 seconds, they're going to Google it. In just 5 seconds, they can write a 50,000 words essay in paragraphs. They have more knowledge as compared to the old traditional methods of teaching. They have more knowledge. And to counter that, teachers should also be aware that where the students can come from, or where the questions can come from. They should be up to date with all the knowledge. They should be up to date with all the current happenings. They should be up to date with all the current trends that are happening. So that whenever there is a question coming from a student, they should be ready to answer. And the other aspect is that what I feel is that if you're not aware about certain questions, if you don't know, don't have a proper knowledge about anything, accept it in front of the student that you're not aware of it, and tell them that we will get back to you. I don't have any knowledge on this particular matter. This is something which is more important as compared to knowing something. Because if you're giving roundabouts to the students, I guess that's when the students know that the faculty. Yes, you can see that easily. If you're aware of it, of course, whatever you are teaching, either it's communication skills or business organization communication, or if the subject is communicative English, personality development, if those are subjects, you should have proper knowledge about it. You should live those subjects. Only then, I guess, you are considered to be a knowledgeable teacher. Both these aspects. One is a human touch to the student, and the other thing is the knowledge that you possess of a subject. And one thing मुझे भी ऐसा लगता है कि interaction between teacher and student while they're in class. Yes, it has to be interactive. The classes has to be interactive. It's most important that they have to be interactive. If the class is going in a monologue, it's just one way, wherein only the teacher is speaking, I guess that proper communication is not happening. We are not recording ourselves in a radio station. We are not in a print media. We are not in a television wherein only a monologue can happen. And most of the teachers do. Yes, that's what happens. That's where the teacher is disconnecting from the students. It has to be interactive. You have to ask questions. You have to see the doubts of the students. You have to ask them. You have to grab their attention when they are sitting. Because for an hour,
teaching a subject becomes very monotonous. And every day if you are doing it, it even becomes more boring. How do we do it? We interact with the students. We go ahead, talk to them, resolve their queries, and that's how I guess the interaction with the students happen. And that's where the main connection happens. So that's what I feel. What do you think about AI in teaching? AI in teaching. Okay. What if I tell you that my best friend is Siri? Or for that matter, my best friend is Alexa. अच्छा तो ठीक है। मैं आपको अगर आपसे ये एक क्वेश्चन पूछूं कि प्रांशु के अगर मेरा बेस्ट फ्रेंड सिरी है या एलेक्सा है तो कैसा लगेगा आपको? आप क्या सोचोगे मेरे बारे में? मतलब यू आर मोर एक्साइटेड मे बी ओके। मैं अपना बोलूं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरा सिरी है तो क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर देता है, राइट? वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। और मतलब अगर मैं आपसे फिर भी एक बात बोलूं कि मेरा बेस्ट फ्रेंड, मैं फिर से क्वेश्चन पूछता हूँ कि मेरा बेस्ट फ्रेंड सिरी है, मेरा बेस्ट फ्रेंड एलेक्सा है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मेरा कोई ह्यूमन फ्रेंड नहीं है, तो कैसा लगेगा आपको? क्या सोचोगे? यही सोचोगे ना कि यार ये बड़ा अलोन सा है, ही इज अ वेरी लोनली गाय एंड इसका कोई दोस्त नहीं। तो सिरी और एलेक्सा को अपना दोस्त बना लिया, उसी से क्वेश्चन पूछता है, उसी के आंसर सुनता है और उसी के साथ बातें करता है। लोग शायद उसको मेंटली रिटार्डेड भी समझे, लोग शायद उसको समझे कि एक मेंटल इलनेस से गुजर रहा है क्योंकि ये सिरी और एलेक्सा से बात करता है, राइट? एक ट्रेडिशनल क्लासरूम इकोसिस्टम होता है जिसमें एक स्टूडेंट और एक टीचर इंटरैक्ट करते हैं। मैं जैसे अपन लोग, मैं सभी बच्चों से पूछता रहता हूँ, क्वेश्चन हमेशा मेरा कॉमन रहता है। आई आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम ऑल माय स्टूडेंट्स दैट इफ गिवन अ चांस व्हिच मोड वुड यू लाइक टू स्टडी इन? इज इट गोइंग टू बी एन ऑफलाइन मोड और एन ऑनलाइन मोड? तो बच्चे बोलते हैं सर ऑफलाइन, राइट? ऑफलाइन मोड है, ठीक है, बहुत बढ़िया। टीचिंग मेथड में एआई की उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी कि एक स्विमिंग पूल का जो गार्ड है, जो बैठता है वहां पर, गार्ड में जो बैठता है, उसकी इंपॉर्टेंस है जहां पर ओलंपिक्स हो रहा हो स्विमिंग का। जितने भी स्विमर्स हैं राउंड द वर्ल्ड, जितने भी स्विमर्स हैं राउंड द वर्ल्ड, वो ओलंपिक्स में आते हैं अपने तैराकी दिखाने के लिए और उनके पीछे गार्ड बैठा होता है। वो एक यूजलेस जॉब हो जाती है। यूजलेस जॉब कैसे होती है कि आप स्विमर्स हैं, सब अलग राउंड द वर्ल्ड से इतने बड़े बड़े स्विमर्स आए हैं और मेरे को बिठाया हुआ है लाइफ गार्ड की तरह कि अगर कोई स्विमर डूबा तो मैं उसको बचा लूंगा। लेकिन हमारे साथ क्या है, ओलंपिक्स के बड़े बड़े स्विमर्स आए हुए, राइट? टीचिंग में भी ऐसा ही है कि अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ रोबोट इज टीचिंग, हाउ वुड वी फील if a robot is interacting with us? 1-2 minute, 3 minute, we will be amazed that this is a good technology, but after like 15 minutes, 20 minutes, that monotonous sound, when we are hearing that monotonous sound, that will become very boring. There will be no interaction first. हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक फैकल्टी ऐसा जो खूब सारा पढ़ाई भी, खूब सारा ज्ञान भी दे और साथ साथ मस्ती थोड़ी सी करवा दे, राइट? that is the most essential part of any class. अब वहीं पर मैं अगर रोबोट को उठा दूंगा तो he will, or that particular thing will only be teaching and there will be no proper interaction with the students, right? तो ये थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैं थोड़ा सा फेवर में नहीं हूं when we talk about class ecosystem. Having said that, when it is about making assignments, making presentation, when it is about creating something, like for example if you're going for a presentation, आप presentation के लिए जा रहे हो, right? तो हमारी presentation की खूबसूरती बढ़ाता है ये। It gives us all the ideas on how you can make your presentation more effective. हमारा टाइम कम कर देता है, it reduces our time in making any presentation or assignments. वहां पर यूज होता है, but again, as I said, AI का बहुत, किसी भी चीज का ज्यादा अति अंत का सूचक है जैसे बोलते हैं, right? अति अंत का सूचक का मतलब ये है कि अगर हम बहुत ज्यादा AI का यूज कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशंस में, असाइनमेंट्स में, आंसर्स लिखने में, तो हम कुछ खुद क्रिएट नहीं कर रहे हैं, we are just copying it. And copying anything is just a Xerox copy of the original. That's a black and white. और हमें भी कभी भी Xerox copy अच्छी नहीं लगती, हम मजबूरी में चलाते हैं। जब तक हमारे पास ओरिजिनल चीजें हैं तो हम Xerox copy का यूज करते हैं। तो yes, having said that, AI, when we talk about classroom, traditional classroom ecosystem, I feel that AI should not participate in it. It should be a teacher and a faculty and a student interaction. However, in presentation and assignments, बच्चों के लिए AI बड़ा useful है, and at the same time it is useful for us as well because we can teach in more effective manner.
ये हमारे लिए भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता, हमारे लिए भी टाइम बिफोर टाइम वी कैन मेक सो मेनी थिंग्स। जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 है, अगर हम उसमें कुछ डालते हैं तो वो अपने आप कुछ डिजाइन दे देता है इन मैटर ऑफ सेकंड्स। हमें जो भी डिजाइन अच्छा लगता है वी सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर डिजाइन। तो यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूजफुल इन दैट, बट इन क्लासरूम इकोसिस्टम, इन टीचिंग इकोसिस्टम, this thing should be avoided. So, your journey from school to present. I'm sorry, yes, I was talking about my journey of like how did I become a professor. So let me just complete that and then we'll come back to this. Okay. And when I came back to Bhopal, my father was not keeping well. Way back in 2011, I came back to Bhopal and he was not keeping well. I tried to find good opportunities in IT, but I couldn't find it. Then I started my own training and coaching center. That was in Sugar Garden and Arera Colony. I had a couple of outlets, तो मेरे couple of offices थे मेरे इंस्टीट्यूट के, वहाँ चालू किया, वहाँ 3 साल सक्सेसफुली चलाया भी, लेकिन due to some personal reasons वो खत्म हो गया, so I dropped that idea. So I became a freelance trainer, I became a freelance teacher. Then I taught in Polytechnic. Personality development, spoken English. Then I used to teach students all the languages, programming languages, C, C++. I used to teach them. And I was a freelance teacher. I was not bounded to any institute. तो वहाँ से मैंने अपना सफर चालू किया एज अ टीचर के, भाई मैं like you know now my focus was on the teacher, but लेकिन एक freelance teacher. Again, I started my this freelance profession from Polytechnic. Then I reached to chartered accountants. मैंने chartered accountants पे पढ़ा हुआ है. I'm an ad hoc trainer. I was a ad hoc trainer at that time. Ad hoc trainer था. Then I happened to be a visiting faculty at IITs as well. तो मैंने वहाँ से अपना start किया. 2019. I still remember the date, and that was 2nd of April. I was I was a little worried about what's going to happen in future, because what happens is when you are a visiting faculty, there are times when there are no classes, because of semester breaks, students are going back, their exams are over, उसकी वजह से classes लगना बंद हो जाती है. I was sitting idle at home, यहीं पर था, मैं इसी घर में था, and I happened to interact with respected Dr. Amarjit Singh Khasa sir. तो मैंने उनको फेसबुक पे एक मैसेज डाला, सर मैं ये करता हूँ, मेरी सिस्टर आपके यहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट है, एंड आई वुड लाइक टू टीच एज अ विजिटिंग फैकल्टी, आई लाइक टू वर्क एज अ विजिटिंग फैकल्टी एट आइपर. मैं जस्ट मैसेज ऑन फेसबुक. मैंने अप्रोच, कैसे पता था, मतलब क्या लिंक था? मेरा लिंक ये था कि मेरी सिस्टर वहाँ से पढ़ी हुई है, she was a student of MBA way back in 2004, जब iper का 8वां साल था. ये नए वाले में पुराने वाले? पुराना वाला, बहुत पुराने से पुराना वाला था, तो वो बहुत पुराना था. I'm talking about almost a decade back. तो उसमें ये हुआ था कि that एक प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पर कि मेरे कुछ मिल नहीं रहा था. I was sitting idle, मैसेज डाला मैंने, सर ने मेरी प्रोफाइल देखी फेसबुक पे, ही यूज्ड टू वॉच माय प्रोफाइल एंड एवरीथिंग. सर ने बोला कि हाँ जाओ. वेरी नेक्स्ट डे 3rd April. 3rd April को क्या हुआ कि आई रीच्ड हाइपर कॉलेज. सर आए एंड आई इंटरेक्टेड विद हिम. He saw something, I don't know what he saw in me, I'm not sure of. He said that why visiting faculty, sir, I don't want to get bounded. He said, what are you earning currently? I gave him a number that I'm earning this much. He said, okay, Inderpreet, but you need to take care of your future as well. You have to, because you're already 36, and now is a time that you need to settle your life as well. Why visiting faculty? Why don't you come as a full-time faculty? I was like, sir, if I am capable of doing that, then I would certainly love to join you, sir. He said, वो मैं देख लूंगा तुम्हारी कैपेबिलिटी है कि नहीं, वो मैं देख लूंगा, तो पढ़ाना अच्छे से, बच्चों से अच्छा कनेक्ट रखना बस. Joined from 2nd May 2019, and that was my first day at iper. मुझे सब्जेक्ट मिला था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट,
एंड माय फर्स्ट क्लास वाज बीकॉम, उसमें सिर्फ 3 बच्चे बैठे थे और उसमें से भी उन्होंने मेरे को देखा कि यार कोई नए फैकल्टी आए हैं, तो उसमें से भी 2 ने बोला कि सर आपको कुछ काम है, हम जा रहे हैं, चलो। एक बच्चे से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। अब slowly gradually I guess I'm doing good. I don't know. Let's see. So that's how I became a teacher. And talking about my journey, class 12th Campion, I graduated to engineering, TIT. I started my engineering in Technical Institute of Technology, Bhopal. Completed my 4 years. Then I got placement in Wipro. That was in Oakland Industrial Estate, Delhi. I worked there for 5 years and then स्कूल से बताऊं मतलब कैसे मतलब कैंपेन में आपने क्या क्या एक्सपीरियंसेस किए? ओ कैंपेन वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। कैंपेन का बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस था उस टाइम पे। कैंपेन वाज द सिनोनिम ऑफ ग्लैमरस था। मतलब मैं आपसे उतने साल पहले की बात कर रहा हूँ जितने साल पहले शायद अपन लोग कोई नहीं था, मतलब थे ही नहीं आप। मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज से एग्जैक्टली 35 years बैक, 36 years बैक, जब मैंने स्कूलिंग चालू करी थी। इट वाज नॉट दैट इजी टू गेट एडमिटेड इन कैंपेन। अब तो खैर बहुत सारे स्कूल आ गए तो एडमिशन मिल जाता है, बट उस समय इट वाज नॉट इजी टू गेट एडमिशन इन कैंपेन। मिलता रहा, जुगाड़ लगानी पड़ती थी। कैंपेन में स्टार्ट किया KG1 का। आई स्टिल रिमेंबर माय क्लास टीचर डिक्रूज मैम, one of the finest teacher I have ever met, one of the finest, one very gentle lady that she is. I still love her. I am connected with her on Facebook. She comments on my photograph. I comment on her. So बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। Class 6th में I was the sports person of the year. मैंने बहुत सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, तो मैं स्पोर्ट्समैन बना। फिर कैप्टन बना मैं एक बार अपने गांधी हाउस का। हमारे यहाँ 3 हाउसेस थे अलग अलग, आपको पता होगा, ग्रीन हाउस, ब्लू हाउस, रेड हाउस, बहुत सारी चीजें होती थी। तो I became a captain of गांधी हाउस, that was रेड हाउस। मैंने वहाँ पर किया sort of। I was not कौन से स्पोर्ट्स में अच्छे थे? I got a gold medal in 110 meter hurdles. मुझे hurdles जो hurdles jump, अच्छा jump on the hurdles, मैं hurdles हैंडल करने में बड़ा अच्छा हूँ लाइफ में भी ऐसे ही। तो मेरे को hurdles में भी 110 मीटर गोल्ड मिला मुझे। Then I was good with cricket. क्रिकेट पे मैं थोड़ा सा जोनल लेवल तक प्ले किया है मैंने, और आज भी कहीं बॉल दिख जाती है, बैट दिख जाता है, तो मेरे हाथ से ना होता हो जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। I was okay with football and I was very good with running. 100 meter hurdle, 100 meter sprint मैंने खेली हुई है। अभी मैं मैराथन जाता हूँ। पिछली बार लद्दाख जाना था, मैं जा नहीं पाया। लद्दाख मैराथन में मेरा नाम था। I like रनिंग। साइकिलिंग बहुत ज्यादा पसंद है। साइकिलिंग में करता हूँ चाहे कैसे भी हो, एवरी डे, और maybe alternate days I go for cycling. Maybe ज्यादा कुछ नहीं, 15-16 किलोमीटर कर लेता हूँ। But what I'm passionate about is swimming. मतलब मैं आपके आने से आधा घंटा पहले स्विमिंग से करके आया था। I love swimming. मैं जब 3 साल का था तब से मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। Almost 3.5 decades से मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। तो मुझे स्विमिंग बड़ी पसंद है। Because मुझे लगता है कि swimming is that exercise which can beat any other exercise, beat cycling, beat jogging, उसमें सारी exercise। तो मैंने ये स्कूल टाइम से ये करना चालू किया था। क्लास 10th में, 11th में, 12th में थोड़ा डिसेंट स्कोरिंग हो गई थी। उस टाइम पे 70% में ढोल लगाड़े बजने लगते थे हमारे यहाँ। आजकल 70% में कोई पूछता नहीं, राइट? लेकिन उस टाइम पे बहुत ज्यादा परसेंटेज थी, और we considering me as a math student, so it was like it was almost a cherry on the cake when you are scoring good. All-rounder student. All-rounder, हाँ, all-rounder बोल लो आप। जैसे युवराज सिंह, तो हम युवराज सिंह थे अपनी फैमिली के। तो आप नेशनल लेवल पे नहीं गए? नेशनल लेवल में जाने की कोशिश करी, बट इतना ज्यादा कंपटीशन तो अपना हो नहीं पाया। तब से खेलता भी नहीं था। स्टेट लेवल तक गया था, एक्सेप्ट भी हो गया था, बट अगेन इंजरी, जो आज तक मेरे को परेशान करती है। लेग इंजरी हुई थी। आई वाज प्लेइंग एंड आई फेल डाउन, तो मेरा नी डैमेज हो गया। क्रिकेट। एंड वो जो मैं गिरा, तो वो पत्थर के ऊपर गिरा। पत्थर ऐसा नहीं गिरा, फेल ऑन इट एंड आई डैमेज्ड माय नी। फिर थोड़ा सा उसमें लाइक टाइम लग गया मेरे को उससे रिकवर करने में। एटलीस्ट 3 to 4 months मुझे लग गए। फिर उसके बाद अपन मेरा ड्रीम जो था वो चला। लेकिन 12th में आई स्कोर्ड गुड। उस टाइम पे
इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होते थे, पीईटी। मैंने वो दिया, सोचा था कि कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा, लेकिन ठीक है कॉलेज मिल गया, टीआईटी। वहां से इंजीनियरिंग करी। हाँ, पहले प्रांशु, पहले क्या, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको अगर लेना है तो पीईटी होता था, एंट्रेंस टेस्ट होता था वो। that was मैं भूल भी गया, that was proficiency engineering test एग्जाम होते थे, proficiency engineering test, yes। अब उसमें क्या होता था कि आपके जितने मार्क्स बने होते हैं आपको मिलते थे उसी कॉलेज में, उसी हिसाब से वो कॉलेज में एडमिशन मिलता है। अब मैंने उस समय LNCT was the IIT of Bhopal। LNCT was a big name, Oriental was a big name, then came TIT। अब वो TIT में भी मेरे को चाहिए थी इलेक्ट्रॉनिक्स, लेकिन मुझे IT मिल रही थी, तो मैंने धोखे से ले लिया IT में। चलो ठीक है, ले लेते हैं, अब पढ़ना तो स्टार्ट करना ही है, आई डोंट वांट टू वेस्ट 1 year ऑफ माय लाइफ, क्योंकि उस समय ड्रॉप लेना वाज अ साइन ऑफ स्टिग्मा, इट वाज अ ब्लैक डॉट ऑन योर वाइट कैनवस, तो इसलिए मैंने सोचा ले लिया। बट दैट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड डिसीजन। आफ्टर 4 years IT वालों को सबसे ज्यादा जॉब मिली। IT वालों का प्लेसमेंट 93% था, बाकी सारे उस टाइम पर मैंने मान के चलो, जब मेरा प्लेसमेंट हुआ तो मेरे को 17,500 ऑफर हुआ। आज से मैं आपको बता रहा हूँ 25,000 उस टाइम। आज का वही लगा लोगे तो वो स्टार्टिंग पैकेज 70,000। इट वाज डिसेंट, इट वाज वेरी गुड उस हिसाब से। हमारे खर्चे नहीं थे उस समय, खर्चे अब तो खर्चे बहुत। वी हैव स्मार्टफोन्स, वी हैव सो मेनी थिंग्स। उस समय खर्चे नहीं थे। नोकिया 1100 आता था और नोकिया 3510 आता था, वो आते थे 2,000 रुपए के। उस समय आता था कि 2,000 रुपए कहाँ से लेके आएंगे, लेकिन चलो अफोर्ड कर लेंगे। अब खर्चे बढ़ गए तो 1.5 लाख भी कम लगती नौकरी। और उस समय हाँ, आई स्टार्टेड माय करियर विद दैट। फिर विप्रो में आया, विप्रो में आके दिल्ली पहली बार लाइफ में एंटर किया। अब भोपाल तो उस समय गाँव, दिल्ली हाँ दिल्ली में, यस। वहाँ पे क्या जॉब थी आपकी? मैं एज एन IT इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आई स्टार्टेड एज एन सॉफ्टवेयर एसोसिएट। सो अब जो हम आज के डेट में भोपाल में हैपनिंग देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, वो आज से 25 साल पहले मैंने वहाँ एक्सपीरियंस करी। फर्स्ट डे हैपनिंग लाइव, हैपनिंग लोग, मेट्रो बन रही थी। मेट्रो उनकी 1-2 लाइन में चल चुकी थी, और मतलब हम लोगों ने वो एक्सपीरियंस ऑलरेडी करना चालू कर दिया था वहाँ पर लाइफ। ये चीजें जो आज के डेट में अभी तक वो बनी नहीं है। आप दिल्ली में कहाँ पे रहते थे? मैं पहले रहता था फ्रेंड्स कॉलोनी में, फिर GK में रहा हूँ 1 साल, फिर मैं लाजपत कॉलोनी में 3 साल रहा हूँ। 1 साल मतलब मेरा ऐसा जर्नी रही है। लाजपत नगर में रहा हूँ, बहुत बड़ा, इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड हैविंग सेड दैट, वहां पर मेरे दोस्त भी अच्छे बने, बड़ी हैपनिंग लाइफ थी वहां की। अब वो एक लड़का गांव, ऑलमोस्ट गांव से जब उसको दिल्ली में जाके फेंकोगे तो उसके लिए तो हर चीज हरी हरी लगेगी। एंड आई वाज लाइक वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑल दीस थिंग्स। वहां के पब्स और डिस्कोस बड़े अलग से थे, वहां पर हम लोग बड़ा एंजॉय करते थे। फिर मेरी नौकरी लगी डेल में। मेरे को डेल से ऑफर आ गया था, जो कि एक इट वाज वन ऑफ द क्लाइंट ऑफ विप्रो, जिसके लिए मैं काम करता था। विप्रो डेल के कंप्यूटर्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाता था। तो डेल में मुझे एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय का ऑफर आ गया कि इसका काम थोड़ा सा अच्छा है, इसको बुला लो। तो डेल चंडीगढ़ में मैंने फिर जाके जॉब की। आई वर्क विद डेल चंडीगढ़। आई वाज देयर इन द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एज वेल। बहुत सारी चीजें में था मैं। आई वाज वर्किंग वेरी गुड। देन आई गॉट मैरिड। चंडीगढ़ डेल में ही थी। कितने टाइम चंडीगढ़ में जॉब किसको? मैं 7 साल जॉब करी है। 7 साल जॉब को शादी को भी? शादी मेरी मैंने 2 साल जॉब करी दिल में, तो सेकंड ईयर में शादी हुई थी 2008। दैट वाज अ लव मैरिज। तो वो एक सीन अलग था। वो पंजाबी मिल जाते हैं तो स्टोरी हैपेंस, राइट? तो वहीं पर ही सारी स्टोरी हैपन हुई। आई वाज वेरी मच अट्रैक्टेड विद Chandigarh. I still am. If I get an opportunity in teaching in Chandigarh, I would not even think twice and will move to that place, because it's very clean, very beautiful, very well planned. Every sector has its own market, and unlike Delhi was a horrible experience. वो थोड़ा टाइम के लिए था, 1 साल 2 साल, लेकिन फिर उसके बाद जब सच्चाई दिखी तो आप वाज लाइक क्या चलो। दिल्ली में विप्रो में कितना साल काम किया? मैंने 5 साल। अच्छा 5 साल। 7 साल। तो आपका प्रमोशन हो रहा था या फिर प्रमोशन? With Dell, I was working as a software lead.
मैं सॉफ्टवेयर लीड कर रहा था. I was leading a team of not that big but 17 people. फिर उसके बाद वहाँ पर भी बड़ा आगे बढ़ा. And then I climbed up the ladder, started as the workforce head and was managing almost 1,000. Workforce head means that workforce planning. How many people you need when it's sort of an HR job. So that was my profile when I resigned. Why did you? Father was not keeping well, and I had to come back because I'm the only son, and there was no one to take care of his business. So he was not keeping well, and he had some major arthritis problem. There was a significant problem in his life, and that was the time he could not even move. So I had to come back. I had to take care of his medications and everything, business. वहाँ से चालू किया अपना भोपाल का सफर बड़ा खतरनाक निकला लाइफ में. अब एक दिल्ली चंडीगढ़ से कॉर्पोरेट वर्ल्ड से आया हुआ व्यक्ति यहाँ पर अब जाके देखेगा तो क्या देखेगा. अब आज से 10 साल पहले 11 साल पहले भोपाल वैसे ही था जैसे पहले था. मैं जब छोड़ गया था तब भी भोपाल वैसे ही था. तो अब जाके थोड़ा मॉडर्नाइज हुआ, बट लेकिन भोपाल पहले वैसे. ऐसा क्यों लगता है? वो that is something which is very difficult to comment. नहीं तो घर पे आ जाएंगे गालियाँ. I don't want to get into that situation. Now it is I am liking it in Bhopal, but earlier no opportunities, no scope in Bhopal. I was actually stuck up. But when I started as a freelance trainer, it was before 2015. So when I then started working as a freelance trainer, that was the time I realized that yes, I can do something in Bhopal. So I started working as a freelance trainer. So after Dell में कितना पैकेज हो गया? That was a very painful. We used to get somewhere around, like any director of any institution who is earning right now. I used to earn that way back in 2011. My take home every month was 1.7. So that pains a lot, right? So that, of course, that pains a lot because that was huge. I got a Ford icon for myself. I got a Pulsar 220. That line Pulsar was happening. Yes, and when I booked it, when I did the delivery, I was 345th just at Chandigarh. I was very proud of it. I have lived that life. I got a PlayStation 2, I got a PlayStation 3, PlayStation 1. I used to get time in the night. I used to play a lot, and moreover, I had the compact disc and the setup, everything, like the console and everything. उसकी वर्थ थी 2.5 लाख रुपए. मतलब पूरे कैसेट्स, पूरा लाइक कंसोल सब पूरा मिला के मेरे पास बड़ा अच्छा होम थिएटर सिस्टम था उस समय. बड़ा अच्छे बड़ी टीवी, आजकल लोग बड़ी टीवी देखते हैं, मेरे पास उस समय बड़ी टीवी थी. एंड मैं जब खेलता था तो आस पड़ोस वाले आते थे कि भाई थोड़ा स्लो कर दो, बड़ी प्रॉब्लम होती थी उनको सोने में. लेकिन अनलाइक एवरीवन मैं स्लो नहीं कर पाता था क्योंकि यार गेम खेलने का मजा ही वो है जब तक आवाज ना आए. तो वहां पर मैंने एक बड़ी अच्छी लाइफ जी है. फिर वापस आया, देन थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी के समझ में आया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है. तो वो चीजें करना स्टार्ट करी. एंड देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई केम टू टीचिंग. फिर समझ में आया कि थोड़ा सा बच्चों वाली चीजें खत्म कर दें. देन you have to be responsible because now you have a responsibility of a mother on me, and that too she's a cancer survivor. So yes, she's a cancer survivor, तो और responsibility बढ़ जाती है. तो बस here I am in 2023, still an accidental teacher who is just trying to influence students in a positive manner कि भाई अगर खुद भी सीखोगे तो लाइफ सिखा देगी. So that's what I'm doing. That's what my journey is. तो एक क्वेश्चन आ रहा है, हाउ टू इम्प्रूव आवर कम्युनिकेशन स्किल्स इन लाइफ एंड रिलेशनशिप्स बोथ. मैंने जब कम्युनिकेशन स्किल्स पढ़ाना स्टार्ट किया था सबको बच्चों को, तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है. उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कम्युनिकेशन. सो किसी ने बोला वर्ड्स, क्लियर मैसेज, दे सेड द चैनल, द मीडियम अच्छा होना चाहिए. सबने बोला. मैंने एक वर्ड बोला उनको, द
commitment. The communication requires commitment. Or any other aspect of your life. You are going into a relationship, you are going into anything in your life. Commitment is the most important. और communication का commitment से क्या? How does communication happens? Either it's a one way or a two way. One way की अपन बात नहीं करते because that never happens. वो टीवी में और रेडियो में बैठ के अपन उनसे बात कर नहीं सकते. Communication है नहीं. वो सिर्फ एक feeding हो. It is holding that knowledge. अब two way communication क्या होता है? We have a message. We want to deliver it to someone. Not just deliver, we have to make them understand as well. So that they can react or interact with us back. ये एक communication है, एक छोटा सा एक cycle हो गया. Now, I have an idea. I have a very good idea about something. कोई business idea हो गया, कोई नया entrepreneurship का idea हो गया, कुछ बहुत सारी चीज़ों का idea हो गया. अब मैंने वो बोलना चालू किया कि भाई चलो हाँ सॉरी अब मैंने बोलना चालू किया जैसे I have a very good idea and I want to tell that to you. मुझे तुमसे बात करनी है, बड़ा अच्छा idea है, very good idea, business idea that can flourish very easily. तो क्या होगा वहां पर जाके that आप अगर interested हो, आप अगर committed हो, तो आप मेरे साथ interact करो. But what if you are not committed? अगर आप committed नहीं होंगे, आपको interest नहीं होगा, तो आप क्या communication कर पाओगे मेरे से? Never. आप सिर्फ सुनोगे बैठ, आप सिर्फ ओके, आप थोड़ा समझ भी लोगे, लेकिन क्या हम उससे प्रॉपर इंटरेक्ट कर पाएंगे? उसमें कंफर्ट और ट्रस्ट का भी होगा. ऑफ कोर्स सभी को उसमें आता, उससे पहले आता है कमिटमेंट कि मेरे को कमिटमेंट रहना है. आई नीड टू आइदर फाइंड अ पर्सन हु इज कमिटेड टू दिस और आई शुड रादर बी दैट पर्सन टू व्हिच आई कैन बी कमिटेड. मैं आपको अपने आप को बनाना उसके पर्सपेक्टिव से सोचना. कोई भी एक अच्छा लीडर वो कम्युनिकेट कैसे अच्छा करता है क्योंकि दे आर कमिटेड टू इट. मैं एक लीडर हूं तो मैं अगर स्टेक होल्डर्स हैं, मेरे स्टेक होल्डर कौन हो गया? मेरे एम्प्लॉइज, मेरे कस्टमर्स, मेरे पार्टनर्स, मेरे क्लाइंट्स, ये सब मेरे स्टेक होल्डर्स हो गए. अगर मेरा इनसे कमिटमेंट नहीं होगा तो मैं कभी कम्युनिकेट नहीं कर पाऊंगा. द फर्स्ट थिंग इज कमिटमेंट. अगर आप मेरे से कोई सी भी इंटरेक्शन के लिए कमिटेड नहीं रहोगे प्रांशु, आप कभी भी वो कम्युनिकेशन दैट कम्युनिकेशन विल नेवर हैपन एट द वेरी फर्स्ट प्लेस. ये एक पहला हो गया कमिटमेंट. अब दूसरा आता है अ क्लियर मैसेज. अब क्लियर मैसेज आप सोचोगे सर मैसेज के क्लैरिटी के से क्या मतलब है? मैसेज के क्लैरिटी से मतलब है कि मैं यहाँ पर इंग्लिश हिंदी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर इंग्लिश की बात कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर हिंदी की बात कर सकता हूँ, लेकिन आपका मैसेज बहुत प्रिसाइज और टू द पॉइंट होना चाहिए. आप किसी भी व्यक्ति के साथ आप जब उससे बहुत ज्यादा प्रेरित होते हैं, वी आर वेरी मच इंस्पायर्ड बाय देम, तो उनकी एक चीज बड़ी अच्छी लगती है दैट दे आर वेरी क्लियर विद देयर थॉट्स. यस, आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर के पास चले जाओ, यू लिसन टू एनी ऑफ द मोटिवेशनल स्पीकर, बट यू विल लव सम लिसनिंग टू सम पीपल बिकॉज़ दे आर वेरी क्लियर विद देयर थॉट्स. एंड व्हेन दे आर क्लियर विद देयर थॉट्स, आई गेस that's when the clear message is being delivered. भाई तुम clear message deliver कर पा रहे हो जो कि हम समझ भी पा रहे हैं. वो क्लैरिटी कहाँ से आती है? वो क्लैरिटी आती है अंडरस्टैंडिंग व्हाट माय टॉपिक इज फर्स्ट. मेरे को नॉलेज कितनी है अपने टॉपिक की और मेरे सामने वाला ऑडियंस कौन सा. अब अगर मैं 6th क्लास के बच्चे को स्टॉक मार्केट के बारे में बताने जाऊंगा तो लेकिन मेरे को पढ़ाना है पढ़ाना तो है, कैसे पढ़ाऊंगा मैं? मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, मेरे को एक सब्जेक्ट दिया है investing in stock market and you have to teach that to class 6th student. कैसे पढ़ाऊं? That will be a tough task, but I have to. तो हमें वहां पर अपनी ऑडियंस को समझना है कि मेरे क्लास में 6ठी क्लास का बच्चा है तो मैं इससे इंटरेक्ट कैसे करूं. क्या हम उससे टेक्निकल बातें कर सकते हैं? वो समझेगा ही नहीं. तो हमें क्या करना चाहिए? स्पीक इन द लैंग्वेज दे कैन अंडरस्टैंड. अब 6th क्लास का बच्चा इंग्लिश में हमने बहुत सारे बड़े बड़े जार्गन यूज कर लिए, जार्गन मतलब टेक्निकल वर्ड्स यूज कर लिए, तो वो समझेगा ही नहीं. राइट, हमें समझाने कहाँ से चालू करना चाहिए जो चीज समझे. कि अगर मैं एक चार्ट प्रिपेयर कर दूं और एक लाइन ऊपर डाल दूं, आप भी इमेजिन करो, एक चार्ट बना हुआ और एक लाइन ऐसे जा रही है, मतलब क्या है? कोई स्टॉक का प्राइस ऊपर चढ़ रहा है, और वहीं मैं एक चार्ट बना हुआ उसको नीचे कर दूं तो मतलब क्या है? स्टॉक का प्राइस नीचे जा रहा है.
वहीं से इमेजिनेशन होना चालू हो जाती है। फिर हम उठाते हैं हिस्टोरिकल डेटा कि आज से 10 साल पहले ये स्टॉक मार्केट का, ये स्टॉक का प्राइस क्या था, आज कहां पर है, गिरा हुआ उठा हुआ है। मेरा बस कहने का मतलब ये है कि हमें लैंग्वेज मैसेज क्लियर होना चाहिए। हमें फर्स्ट मुझे उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि मैं क्लैरिटी ला सकूं, और सेकंड मेरा ऑडियंस कौन है इसको मेरे को समझाना। अगर मैं दोनों में से कोई भी चीज मिसिंग होगी, अगर मेरे पास नॉलेज नहीं होगी तो मैं किसी भी ऑडियंस को तो मैं कभी समझा नहीं पाऊंगा, और अगर मेरी डिलीवरी वैसी नहीं हुई जो मेरे ऑडियंस समझ पाए तो मैं कभी भी अपना मैसेज डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। कम्युनिकेशन कभी हैपन होगा ही नहीं। फर्स्ट इज योर कमिटमेंट, सेकंड इज योर क्लैरिटी, क्लैरिटी कम्स विद योर नॉलेज, थर्ड थिंग इज योर कॉम्पिटेंस। हम कोई भी चीज में कॉम्पिटेंट कैसे होते हैं? अगर मैं तुमसे बोलूंगा प्रांशु यार अपन को क्रिकेट खेलना आईपीएल, प्रांशु को आईपीएल खेलना, आईपीएल 5 दिन बाद है, तो क्या प्रांशु आईपीएल खेल पाएगा? Probably not. क्यों नहीं खेल पाओगे? Because you need that kind of practice. अब मैं ये बोलूं प्रांशु यार 5 साल बाद है आईपीएल खेल पाएंगे? क्यों? Even after a couple of years you will be able to play. Why? Because you are practicing that again and again. मैं अपनी कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करता हूँ प्रांशु? मेरी हैबिट में वो चीजें आ जाती हैं। आपने बोला कि कई टीचर्स अच्छे क्यों होते हैं? क्योंकि वो एवरीडे टीचिंग करते हैं, वो एवरीडे वो बार बार लगातार वही चीजें करते हैं और इम्प्रूव करते रहते हैं, and that's how they become competent. मैं कॉम्पिटेंस डेवलप कर रहा हूँ। आई एम नॉट जस्ट होल्डिंग नॉलेज, मैं नॉलेज होल्ड नहीं कर रहा हूँ। नॉलेज होल्ड करने का मतलब मैं खुद पढ़ता चला जा रहा हूँ, मैं कहीं डिलीवर नहीं कर रहा। जब तक डिलीवर नहीं करोगे तब तक लोग कैसे जानेंगे तुम कितने कॉम्पिटेंट हो? मैं अपने चीजों में, अपने हैबिट्स में कोई चीज ले आता हूँ, अपने हैबिट्स में when I get those things into my habit. You like painting, do it every day, even if it is for half an hour. You like creating something, create that. You like reading, you read every day, 5-10 minutes, 15 minutes. मेरी हैबिट में आ जाएगा। मैं एक बच्ची को कोट करना चाहता हूँ, मेरी आज जिसको मैंने पढ़ाया है, कृतिका माहेजा, शायद जानते हो कृतिका माहेजा, you know her, right? You know that she's a blogger and उसको बड़े बड़े पब्लिशर्स अपनी बुक देते हैं रिव्यू करने के लिए कि ये बुक कैसी है। Yes, she is that. उसके कभी आप फेसबुक, इसके इंस्टाग्राम पे कभी आप फॉलो करो तो वो दिखेगा। Every month she is mugging up and reading at least 10 to 15 books and she is doing that every day. उसकी हैबिट में आ गया। आप कोई सी बुक को उठा के पूछ लोगे, she has a knowledge of that book. Why? Because she is doing that every day. तो मेरी कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाती है। एक तो हो गया मेरे पास कमिटमेंट नहीं होगा तो कम्युनिकेशन कभी हैपन नहीं होगा। दूसरा हो गया मेरी क्लैरिटी, नॉलेज कितना है मुझे। तीसरा हो गया उस नॉलेज को मैं बार बार कितना यूज करता हूँ, मैं हैबिट में कैसे लेके आता हूँ। यही एक क्वेश्चन में सबसे पूछता हूँ। दैट कॉन्फिडेंस का छोटा सा एक लाइन से मैं क्वेश्चन से मैं क्लैरिटी करता हूँ कि हमने लास्ट टाइम अपने पेरेंट्स को कब प्यार करना चालू किया? हम बता ही नहीं सकते। ये देखो आपका चेहरा, आपके एक्सप्रेशंस, इट हैज चेंज्ड। That's a very stupid question. Yes sir, मैं तो जब से होश पकड़ा तब से, शायद मैं उससे पहले भी कर रहा हूँ, लेकिन जब होश पकड़ा था तब से लेकर आज तक कर रहा हूँ, आगे इटर्नल लाइफ में करता रहूँगा। यही एक हमारी हैबिट में आ जानी चाहिए कि अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगती है, कम्युनिकेशन करना अच्छा लगता है, if I like communicating, if I like doing, if I like interacting, I have to do it every day. लाइकेबिलिटी की बात है तो करनी पड़ेगी। Yes, लाइकेबिलिटी भी की बात भी नहीं है। आप मेरे को कोई एक लीडर है, आप अच्छे लीडर में और एक मैनेजर में कैसे डिफरेंशिएट करते हो? लीडर वो एवरीडे लगातार करता रहता है, मैनेजर सिर्फ फॉलो कर रहा है ऑर्डर्स, ऊपर से आए यार तुमको करना ही है, लेकिन लीडर इनिशिएटिव लेता है, लीडर वो खुद करता है, पहले बार बार लगातार करता है, उसमें अपनी कॉम्पिटेंस डेवलप करता है और फिर लोगों को पाथ दिखाता है। Why is Khatsa sir such an excellent leader? Why he can lead people? He has brought iper out of so many problems. इतना iper को iper सर ने बनाया है, to be very honest. वो क्योंकि वो बार बार लगातार every day वो वही करते हैं। वो passionate है, he's passionate about numbers, he's passionate about stock market, he's passionate about teaching, influencing people. उनको आप कोई भी स्टेज दे दो वो बोलना चालू कर देंगे। जैसे अपन ने उस दिन impromptu पॉडकास्ट देखा था उनका, he was so good with reply, precise, आधे घंटे में उन्होंने 10 मिनट में खत्म कर दिया था, सोचो। And that is the competence, that's competence looks like. तो ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। One is the first C that I feel is the commitment, the second C is the clarity, and the third C is the competence.
That's what I feel. What drives you right now? What drives me right now? First of all, my car. I love it. I just love it. I simply love it. And now I'm planning to get a Fortuner very soon. In like 4-5 years, and before 5-6 years, I'll get a Fortuner. I love SUVs. मेरा ड्रीम था, मेरे पापा का भी ड्रीम था कि बड़े टायर वाली गाड़ी लेनी, पापा से बोलते हैं बड़े टायर वाली गाड़ी लेनी, तो मैंने खरीद ली. चलो, एक चीज होगी मेरी कार. That drives me crazy. Second, my bike. That drives me crazy. Third, the knowledge. Knowledge, ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, कोई बुक खोल ली मैंने पढ़ ली. Knowledge can come from anywhere. आप किसी एक्सपीरियंस व्यक्ति के साथ बैठ जाओगे, वहां से बहुत नॉलेज मिलेगी. आप कोई बुक उठा के पढ़ लोगे, you'll get a knowledge from it. You open a YouTube channel, watch something. आप राज शमानी का अगर आप कोई एक YouTube देख लोगे, सॉन्ग पॉडकास्ट देख लोगे, तो आपको बहुत मिलेगा. तो I'm driving. I love getting knowledge from anywhere. अभी एक मैनेजमेंट की बहुत छोटी सी बुक रखी हुई थी ऊपर, उसकी रीडिंग है. जेफ केलर की बुक पढ़ी थी. Attitude is everything. उठा के पढ़ ली पूरी. कुछ बहुत सारी चीजें तो ग्रास्प नहीं कर पाओगे वैसे भी, but there are few things that you keep in your mind. And again, the third thing is knowledge. So, money and knowledge. Money के बिना तो you're not surviving. So मेरे से लोग पूछ रहे थे कि motivation, what motivates you? So I said, सब लोग बोलते हैं listening to music and books. So wow, very nice. So you work with us, and I'll give you, good repositories of books. Or if you like to listen to music, great. मैं आपको ऐसे रूम में बिठा दूंगा जहाँ पे म्यूजिक ही चलेगा पूरा टाइम, लेकिन मैं आपको सैलरी नहीं दूंगा. तो क्या काम करोगे? Be clear with your words. Be clear with your, very precise with your understanding कि मुझे फोकस करना है, पैसा कमाना है. be honest. Yes, be honest with yourself. हमें को पैसा कमाना है, सभी को पैसा कमाना. Who doesn't want to earn this? तो आपको मैं जैसे आपका ये पॉडकास्ट बढ़ेगा आगे, तो आप भी चाहोगे कि मेरे भी अच्छे बड़े बड़े गियर्स हों और भी ज्यादा अच्छा स्टूडियो हो मेरा, तो फ्री में तो आएगा नहीं. It requires capital. Yes, it requires capital. Capital का मतलब मुझे काम. आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? मतलब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम या रिटायरमेंट का कुछ सोचा है आपने? मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो सबसे पहला. सेकंड चीज मेरे को चाहिए है that I love shopping and I don't have to look at the price tag before I shop. So what's financial freedom according to you? Financial freedom according to me is that even when you are sleeping, you are still earning. That is the financial freedom. Are you getting confused? सर सोते हुए पैसा कैसे कमा सकते हैं? अब पैसिव इनकम. पैसिव इनकम तो ठीक है, पैसिव इनकम तो 10,000 की भी होती है. मेरा एक बात बताऊं, my father used to say that छोटी-छोटी पॉकेट्स बनाओ पैसे की. 5,000 यहाँ से कमा लो, 10,000 यहाँ से कमा लो, 15,000 यहाँ से कमा लो. तो मैं सोचता कि यार ये क्या बात है, क्यों पॉकेट बना? आप बोलते हैं मैं तेरे को एक ज्ञान की बात दूंगा, थोड़ा टाइम मिल जाए. तो आज पापा के जाने के बाद समझ छोटी-छोटी पॉकेट कैसे. मेरी 4 दुकानें जहांगीराबाद में जो पापा की थी, मैंने 2 दुकानें रेंट पे चल रही थी, 2 दुकानें मैंने यहाँ पे ली, 2 फ्लैट मैंने मीनार में ली. अब मेरे पास हो गए तकरीबन 8 प्रॉपर्टीज. छोटी-छोटी पॉकेट कैसे कि अगर मेरे को एक प्रॉपर्टी से 15,000 रुपए भी आया तो कितना हो गया? 1,20,000 रुपए सिर्फ रेंट से आया. ये छोटी-छोटी पॉकेट्स, ये मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम है. आज भी मैं सो रहा हूँ तो किराया का तो पैसा चल रहा है ना जिससे, है ना. और इतना मैंने करा दिया है कि अगर मेरे को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम है तो मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, वहाँ फाइनेंशियल फ्रीडम है. तो मेरे को कुछ भी हो जाए तो 1 करोड़ का मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है और वहीं 1 करोड़ का मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस है. मेरे जाने के बाद ममा सेफ है. तो ये एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है कि आप सो भी रहे हो फिर भी आपका एक मीटर चलते चला जाए. अगले दिन आप नहीं भी उठोगे तो भी उतना पैसा घर पे आ जाएगा कि लाइफ में प्रॉब्लम. What's the financial advice you want to give? Do not hoard your money. Do not put it in saving account. That is just a waste of money. मेरा इन्फ्लेशन इंडिया का 4.5-5% चल रहा है और मेरे को सेविंग्स अकाउंट में जो सेविंग्स अकाउंट्स का मेरा रिटर्न आ रहा है वो 4% आ रहा है. तो ऑटोमेटिकली मैं -2 में हूँ.
इन्फ्लेशन 6%, सेविंग्स अकाउंट मेरे को 4% दे रहा है, -2 में चल रहा हूँ. Save some money and start investing. Where to invest? Mutual funds, systematic investment plans, stock markets में investor बन जाओ, trader मत बनो. जब तक कि मैंने बोला ना अंबानी नहीं हो, तब तक trader मत. Full knowledge. नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ. 1 लाख रुपए लगाया था आज से 10 साल पहले, अपना पूरा पैसा डाल दिया था 1 लाख रुपए का, और 6 महीने में 15,000 रुपए ट्रेडिंग करनी है एवरी डे. और आज 100 रुपए का नुकसान हुआ, अरे कोई बात नहीं, आज 500 रुपए का प्रॉफिट हुआ, अगले दिन जाके 4,000 का नुकसान हुआ. जैसे करते हैं बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा हो गया. बी एन इन्वेस्टर, डू नॉट होल्ड योर मनी, डू नॉट कीप इट इन सेविंग, इट इज गोइंग टू रॉट. पैसे की जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में बहुत बड़ा फर्क होता है. प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आपका 1 रुपए बढ़ गया, वो भी प्रॉफिट है. मैंने एक स्टॉक खरीदा 100 रुपए का था, वो 20 साल बाद 101 रुपए का हो गया, तो वो तो प्रॉफिट है. लेकिन क्या वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है? नो. वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर वो 100 रुपए की चीज 10,000 रुपए की होगी, वहां मेरी वेल्थ बढ़ती है. तो वेल्थ बढ़ाने के लिए मुझे इन्वेस्ट करना चालू करना पड़ेगा. मैं अपना पैसा सिर्फ रख नहीं सकता. जब मैंने अपना सिर्फ पैसा रख लिया, सेव कर लिया, वो मेरे को पैसा रिटर्न देना बंद कर देगा. What about risk factor? जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड. However, having said that, ये एज के साथ चेंज होता रहता है. अभी आप जैसे यंग हैं प्रांशु, आप पैसा कमाओगे, जब पैसा कमाना स्टार्ट करोगे, फाइंड मोर एग्रेसिव वेज ऑफ इन्वेस्टिंग. जैसे आप म्यूचुअल फंड में करते हो तो इट शुड बी इक्विटी लिंक्ड. आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, यू गेट मोर आउट ऑफ इट. बट अगेन कंसिडरिंग योर रिस्क एपेटाइट एज वेल, तो मैं कितना रिस्क कर सकता हूँ. पता चल रहा है मैं 30,000 की नौकरी कमा रहा हूँ और 3 लाख का मैं इन्वेस्टमेंट कर दिया, मिलेगा ही नहीं कुछ वापस, और पैसा डूब जाएगा. रिस्क एपेटाइट कितना मैं कर सकता हूँ. हाउएवर, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड. What are your future plans? मतलब क्या आपको परमानेंट लाइफ टाइम प्रोफेसर बनना है, या फिर you want to switch? I may, but again, I would like to be a teacher because I started loving it, to be very honest, and I feel as if that I've already given significant 5 years. I love it when I interact with students. I love it when I teach them. That I guess if I switch, it would be a better place. But again, I'm not looking for an industry switch. And if at all I get a good opportunity, I like to keep it a freelance opportunity. But my primary profession would be education. Okay. So thank you so much sir, आपने इतना सारा टाइम दिया हमें. Thank you so much. आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने अपने पॉडकास्ट को बनाया. I have my experiences. You are the best teacher I have ever met. Thank you so much, Pranshu. And I feel that, I guess, you're the most sincere student that I have ever met. Even the other people praise you whenever we talk about you. We also praise you. You are looking very confused, but that is the fact. Thank you. Thank you. Thank you so much for being here. Thank you. Thank you so much.